Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to solve class 10th computer science past paper 2024. What is the purpose of defining and analyzing the problem in problem solving process? Defining में हम problem को define करते हैं. Just we should know that what to do. और analyzing में क्या करते हैं हम? Find the possible solution. Find the possible solution to solve the problem. That is analyzing. What is the purpose of search engine? The purpose of search engines to find the information from the Google, from the internet. What is the difference between gets and puts function? Illustrate with an example. ये प्रोग्राम लिखा मैंने, एक array ली हुई है, string array. Enter the input, just message. Gets. The purpose of gets is to get the input from the user, and puts, the purpose of puts is to show the result on output screen. Just I want to run the program. It will display. First of all, it will ask me to enter the input. I'm going to enter the input. For example, I'm going to enter computing knowledge YouTube channel. Just I have entered it. It shows me computing knowledge YouTube channel. ये इसकी output show करेगा. It's happened due to puts. Next, write down the default keywords in switch statement. Default statement का क्या यूज होता है? ये देखिए, जब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है. जैसे कि मैंने देखा केस 1 ट्रू नहीं हुआ, केस 2 भी ट्रू नहीं हुआ, केस n भी ट्रू नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली. इस सिंबल के लिए फ्लो चार्ट क्या है, किसी एक फ्लो चार्ट सिंबल्स का मकसद लिखिए. जैसा कि मैंने ये एक लिखा हुआ इनपुट और आउटपुट सिंबल के लिए. इस पैरेललोग्राम सिंबल में हम इनपुट और आउटपुट शो करने के लिए यूज करते हैं. और इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये हमारा डिसीजन सिंबल होता है जिसमें हम डिसीजन यूज करते हैं, जिसमें हम इफ और एल्स यूज करते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस देखते हैं कि सिलेक्शन के तौर पर हम यूज करते हैं, डिसीजन सिंबल यूज करते हैं. और इसके अलावा ये हमारा प्रोसेस का सिंबल हो जाता है जो कि हमारी रेक्टेंगल आ जाती है. ये हमारा प्रोसेस का सिंबल है. ये मैंने 3 सिंबल बता दिया आपको प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट, आपका वेरिएबल का नाम देने के लिए कोई भी दोस्तों राइट एनी 2 रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम में हम बिगिनिंग में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और फिर वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, और हम अंडरस्कोर को मिडल में भी लिख सकते हैं. वेरिएबल अंडरस्कोर ABC. else k equal to a minus b. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, if a greater than 10 k equal to a times b, else k equal to a minus b. ये इसका आंसर हो जाएगा. Write down the purpose and syntax of do while loop in C. हम do while का syntax लिखते हैं. do, ये parenthesis स्टार्ट हो जाती है, बॉडी, और यहाँ पे हम लिखते हैं while यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन आ गया, और ये यहाँ पे हो गया इसकी बॉडी ऑफ द लूप होगी. राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स ऑफ while लूप. और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कम से कम हमारा कंट्रोल एक बार लाजमी इसमें एंटर होता है, कम से कम एक बार. और आपने इसके लिए वेरिएबल्स के लिए आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते. कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू पुट अ वेरिएबल नेम, जस्ट लाइक इफ, फॉर, एल्स, स्विच, लाइक दैट. इसमें एक्चुअली NAND गेट इज द negation of AND gate. Next, what will be the output of the following code? Integer a equal to 2, switch a means 2, case 2, printf case 2, it will display case 2, and next of this, due to this it will break, and this will not be executed.
Okay, the output will be printf. Output will be case true only. This will display as output. Write a program that read the length and width of a rectangle and print this area. ये प्रोग्राम लिखा हुआ इसमें लेंथ विड्थ और एरिया एज ए वेरिएबल लिए. printf enter the length और width को मैंने एज ए वेरिएबल इनपुट पर लिया और फिर एरिया कैलकुलेट किया. एरिया इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ और फिर हमने डिस्प्ले कर दिया. तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं. लेंथ 5, width 4, आंसर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20. URL क्या होता है? URL is a universal resource locator. This is universal resource locator that is used to identify a website link. For example, google.com. Google is the URL. And next program, determine the output of the following C language. हमने इसकी आउटपुट लिखनी है. सम इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल ले लिया. यहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक मूव करेगा? लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करेगा और n में 2 का इंक्रीमेंट करेगा. और सम में यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और वो कहीं प्रिंट नहीं हो रही. इसका मतलब ये कि आउटपुट में हमने क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू शो करनी है. और n की वैल्यू क्या आएगी? पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा. ये कॉमन ही आएगा, वैसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ. ये टैब के साथ आएगा 1 3 5 7 9. ये ऐसी आएगी 1 3 5 7 9 विदाउट कॉमा. 1 3 5 7. Rewrite the following for loop by using while loop. इंटीजर k इक्वल टू, इसमें क्या करना पड़ता है जी? इंटीजर मैं यहाँ पे लिखता हूँ. इंटीजर k इक्वल टू 25. इंटीजर k इक्वल 25 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. और यहाँ पे while k ग्रेटर देन 0 कंसिस मैंने स्टार्ट कर ली. और इसमें मैं कहता हूँ जी printf में क्या करें? /n%d, k. और यहाँ पे क्या करे जी? k इक्वल टू k-3 सेमीकोलन. ये मैंने लूप लिख, ये मैंने while लूप के थ्रू लिख दिया बाय यूजिंग while लूप. नेक्स्ट इसमें NAND गेट की अलामत बताएं. ये एंड लगाने के बाद आप इसमें नॉट लगा देते हैं तो ये NAND गेट बन जाता है. ठीक है. NAND गेट का ट्रुथ टेबल बनाएं. तो यहाँ पे अगर मैं इसका A, इसको B कह देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके ट्रुथ टेबल वन 1 1 और 0. और यहाँ पे ये और है जी, A प्लस B, ये C का नॉट आ जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B. ये एंड गेट है. यहाँ पे लिख देंगे हम C नॉट A प्लस B. Write down the HTML code to apply bold and underline text for the text. Bold के लिए हम /b यूज करेंगे और अंडरलाइन के लिए /u यूज करेंगे. Draw a flow chart to print the multiplication of a given number. तो हम फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं. हम सबसे पहले स्टार्ट सिंबल यूज करते हैं. ये हमारा स्टार्ट सिंबल यूज हो गया. और इसके बाद हम करते हैं जी, एक नंबर लेते हैं. नंबर इनपुट कर लिया. इनपुट नंबर आ गया. इसका हमने टेबल लिखना है.
और फिर हम 1 से लेके 10 तक लिखना। ड्रा फ्लो चार्ट टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ गिवन नंबर। यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं x इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम कहते हैं x लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करें। अगर ये ट्रू हो 10 तक मूव करें तो यहाँ पे प्रिंट करें x की वैल्यू कॉमा x multiply by 1. Next, write a program to print the sum of squares of all numbers from 1 to 10 using loop. तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं integer x equal to 1 for integer x equal to 1 x less than equal to 10 x plus plus और print sum equal to 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। sum equal to x time x and here integer s equal to 0 because you are going to be add the sum. Sum equal to sum plus x time x, and once you will done the sum, then you can print f sum equal to percentage d comma sum equal to percentage d comma and of sum. Execute and run the program. Sum was not declared this one. Sum equal to sum, right? Sum. Execute, compile or run. Sum equal to 385. This is the program. Next is write down the purpose of the following /a is used for alarm. This is used for backslash, only one slash once used as a escape sequence, and other one, this one is for the printing, /n for the new line, /t for the tab, and /b for the backspace. Write down the differences between of break and continue statement with one example of each. हम एग्जाम्पल देते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो आइए हम चलते हैं एडिटर की तरफ। मैं यहाँ पे कहता हूँ integer x equal to 1 for integer x equal to 1, जबकि मैंने पहले भी डिक्लेयर कर दिया, कोई बात नहीं। चल मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। integer x equal to 1, x less than equal to 5, s less than equal to 10 और x plus plus, और यहाँ पे मैं कहता हूँ if x less than equal to 5 then continue। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ print f percentage d comma x मैंने लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या शो करता है। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया मैंने। x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस प्लस। अगर x की वैल्यू लेस देन 5 हो इक्वल टू तो कंटिन्यू करो, तो आउटपुट में क्या शो करेगा मुझे 6, 7, 8, 9, 10 वो शो कर रहा है। /t के साथ मैं डिस्प्ले करूं ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए। 1 जब 1 होगा तो वो कंटिन्यू करेगा, वो वहां से ही उसको कंट्रोल को वापस भेज देगा। जब x इक्वल 2 होगी तो वापस जाएगा, x इक्वल 3 होगी तो वापस जाएगा, 5 केस तक वो वापस जाएगा। जब 6 होगी तो क्योंकि कंडीशन नहीं ट्रू होगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगी,
तो इसलिए वो डिस्प्ले करेगा 6, 7, 8, 9, 10। और जबकि मैं ब्रेक स्टेटमेंट इसमें यूज कर देता हूं, मैं लिखता हूं ब्रेक और इसको मैं कर देता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो वो ब्रेक कर देगा। इक्वल के लिए ब्रेक कर देगा, ग्रेटर देन जाने की जरूरत ही नहीं। तो डिस्प्ले क्या है, आउटपुट क्या डिस्प्ले करेगा, 1, 2, 3, 4। Write down the difference between ordered list and definition list in the HTML with example. Ordered list में हम नंबरिंग को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, और जबकि हम डेफिनेशन लिस्ट में हम टर्म को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शंस। चलिए मैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे फोकस करता हूँ। व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एनी टू कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी इफ स्टेटमेंट होती है और इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। आप चैनल में जाके देखिए, वो सारी की सारी आपको इफ की भी डिटेल मिल जाएगी और इफ एल्स की भी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह खैर।